ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج سخی شاہ کی درگاہ پر بڑا رش تھا۔ عقیدت مند بہت عقیدت کے ساتھ نذرانہ لے کر آ رہے تھے اور اس کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آج بڑے دنوں کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی اور جس کو پتہ چل رہا تھا وہ اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے اس سے دعا کرانے حاضر ہو رہا تھا تاکہ جلد از جلد دعا کرا سکے کہ پھر نہ معلوم کتنے دن بعد وہ اپنے حواسوں میں واپس آئے۔ زیادہ تر تو وہ اپنے آپ میں مگن ملنگوں کی طرح دنیا سے بیگانہ اپنے آپ میں مست رہتی تھی، پر لوگ کہتے تھے اگر وہ اپنے حواسوں میں کسی لیے کوئی دعا کرتی تھی یا پیشن گوئی کرتی تو وہ پوری ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی صفات سے نوازا تھا اور یہ بات آزمائی ہوئی تھی، اس لیے اس کے عقیدت مندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ کتنی منموہنی سی نازک سی 24-25 سالہ لڑکی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کہ وہ یہاں پہنچی تھی، کیسے پہنچی، کون تھی، یہ سب تو کسی کو نہیں پتا تھا، مگر حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ عجیب مجذوبوں جیسا حلیہ تھا، ہمیشہ آنکھیں جھکی رہتی تھیں، لیکن جس کی طرف اٹھ جاتی وہ اس کے سحر میں گم ہو جاتا۔ اس کے بارے میں وہ جو بات کہتی وہ پوری ہوتی تھی۔ میرے گھر والے بھی اکثر اس کے پاس آتے تھے دعا کروانے کے لیے، لیکن میں روز ہی اس کے پاس چکر لگاتی تھی۔ سکون ملتا تھا اسے دیکھ کر۔ ہمارے علاقے میں وہ حوری مائی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وہ تھی بھی تو بہت خوبصورت۔ دن رات درگاہ میں پڑے رہنے کے باوجود کسی مرد کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے، اور اگر کوئی اس کی طرف بری نگاہ سے بڑھتا بھی تھا وہ قدرت کے عطاب کا نشانہ بن جاتا تھا۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں اللہ کے خاص بندوں میں شامل کیا جاتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے گواہ تو علاقے کے سب لوگ تھے، جو کچھ نمبردار کے بیٹے کے ساتھ ہوا اسے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا گئے اور نمبردار اور اس کے بیٹے کو خوب لان تان ملی۔ نمبردار کے بیٹے نے کیا بھی تو غلط تھا۔ سب جانتے ہیں کہ حوری ایک پاکیزہ اور معصوم لڑکی ہے، مگر اس کی نیت پہ تو شیطان حاوی تھا۔ جب سب لوگ درگاہ پر منت مانگنے میں مگن تھے تو وہ حوری کو تنہا پا کر اس کی نیت اس پر خراب ہونے لگی۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اسی وقت تیز جھکڑ چلا، حالانکہ وہ ایک گرم دن تھا جس میں آندھی یا بارش کا کوئی امکان نہیں تھا، اور پھر جیسے ہی اس جھکڑ کی مٹی نمبردار کے بیٹے کی آنکھوں میں گئی وہ زور زور سے چیخنے لگا کہ اس کی آنکھیں جل رہی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں خون رونے لگیں اور نمبردار کا بیٹا بینائی سے محروم ہو گیا۔ لوگوں میں اس واقعے کو لے کر خوف بیٹھ گیا۔ اب اگر کسی کے دل میں خیال بھی تھا تو وہ بھی محتاط ہو گیا، اور حوری سے عقیدت اور بڑھ گئی۔ پھر اس کی شہرت سن کر ایک دن چودھری کی بیوی درگاہ آئیں اولاد کے لیے اسے دعا کروانے۔ چودھری اپنی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا اور خود وارث سے محروم تھا۔ اولاد کے لیے اس نے 3 شادیاں کی، مگر کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ خوب علاج اور عمل کروائے گئے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس دن حوری ہوش و حواس میں تھی۔ چودھری کی بیوی اسے دعا کے لیے کہہ رہی تھی، تبھی اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھنے لگی کہ قید خانے میں قید عورت کو چھوڑ دیا؟ وہ تینوں حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی تو وہ بولی، ظلم کما کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس سے دعائیں قبول ہونے کے طلبگار ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ پہلے اسے آزاد کرو پھر مانگنا۔ اور پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی چودھری نے اس عورت سے معافی مانگی اور رہا کر دیا، اسے اچھا خاصا پیسہ ازالے کے لیے، وہ نیک عورت تھی، اس نے معاف کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد چودھری کی تینوں بیویوں کے ہاں اولاد کی خوشخبری ملی۔ ایسے بہت سے واقعات تھے جنہوں نے حوری کی شہرت ہر جگہ پھیلا دی، اور تبھی وہ واقعہ ہوا جو حوری کی اصلیت سب کے سامنے لے آیا اور سب حیران رہ گئے۔ شہر سے ایک عورت اپنی ملازمہ کے ساتھ بہت بار درگاہ پر آ چکی تھی۔ ان کا جمع جمایا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، اور اب یہ حال تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ قرض دار ہو گئے ہیں۔ بیٹیاں غلط راہوں پر چل پڑی تھیں اور اکلوتا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ معاشرے میں بنی ساکھ بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی، اور وہ لوگ پریشانیوں کے اس چکر سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اس عورت نے بھی حوری کے بارے میں سنا تھا، اور وہ کئی چکر لگا چکی، مگر ہر بار حوری اس سے نہیں ملتی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ حوری اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس دن وہ ٹھیک تھی اور اس عورت سے ملی بھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو کافی دیر تک دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔
वो दोनों भी उसे देखकर हैरत ज़दा रह गईं। वो अमीर औरत रोने लगी कि बेशक हमारे गुनाह बड़े हैं, मगर तुम हमें बद्दुआ मत देना। हूरी ने कहा कि मैं बद्दुआ करूं या दुआ? कबूल करने वाला तो वो रब है जो सबकी असलियत से वाकिफ़ है, उससे कुछ छुपा नहीं, वो मुनसिफ है। ये कहकर हूरी चली गई। वो दोनों रोने लगी और फिर चली गई। उनकी मुलाजमा ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर दरगाह के लोगों ने उन्हें रोक दिया और वो दोनों वहाँ से चली गईं। लेकिन उसके बाद से हूरी अजीब सी हो गई। मुझसे तो वो हर बात करती थी, मगर अब तो वो मुझे देखकर भी सर झुका लेती थी। जब मैं बात करना चाहती तो वो रो देती और कहती, कुछ ना पूछ यारा, और मैं चुप हो जाती। फिर एक दिन वो अमीर औरत दोबारा आई, मगर उस बार उसके साथ उसका नशई बेटा भी था। हूरी आज दरगाह के सहन में पिलर से टेक लगाकर बैठी हुई थी। वो औरत वहीं आकर बैठ गई अपने बेटे के साथ। उसका बेटा यकटक हूरी को देखे चला जा रहा था। हूरी ने जैसे ही उसे देखा एक चीख मारी और बेहोश हो गई। मेरा नाम इरम है और मैं एक बहुत गरीब घराने की लड़की हूँ। हम 3 बहनें और 2 छोटे भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो गई थी, हम 2 बाकी थे। अब्बा का इंतकाल हो गया था। माँ घरों में काम करती थी, जिससे हमारा गुजर बसर होता। हमारे घर के पास एक रेलवे स्टेशन था, जिसके पीछे की साइड से हमारे घर का छोटा रास्ता पड़ता था। वो रेलवे स्टेशन के मुकाबले में निस्बतन वीरान था। अम्मा अक्सर जल्दी के चक्कर में वहाँ से निकल जाती थी। एक रात अम्मा काम पर से वापस आ रही थी। उन्हें देर हो गई थी तो वो रेलवे स्टेशन की पिछली साइड से निकलने लगी। तब अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो डर गईं कि कहीं जिन भूत ना हो, मगर फिर थोड़ा आगे की तरफ गईं तो उन्हें चांद की मध्यम रोशनी में कबाड़ के पीछे एक लड़की दिखी जो बुरी तरह से रो रही थी। अम्मा उसके पास गईं और उससे पूछा कि वो कौन है। वो एकदम अम्मा से चिपट गई। मुझे बचा लें प्लीज़, मुझे बचा लें, अल्लाह का वास्ता मुझे बचा लें। अम्मा समझी कोई मुसाफिर है, रास्ता भटक गई है, तो अम्मा ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ देती हूँ। मगर वो अकड़ गई, नहीं वहाँ नहीं जाना, अल्लाह के लिए मुझे अपने साथ ले जाएं। उसकी नीली आंखों में इतना कर्ब था कि अम्मा उसे देखते रह गईं और फिर उसे अपने साथ घर ले आईं। हम सब अम्मा के देर से आने और भूख की वजह से परेशान थे, क्योंकि रात का खाना अम्मा घरों से लेकर आती थी। मगर जब अम्मा आई तो उनके साथ एक 16-17 साल लड़की भी थी जो बहुत खौफजदा थी। मेरा छोटा भाई कहने लगा, ये क्या अम्मा, हम तो खाने का इंतज़ार कर रहे थे और तुम लड़की ले आई। अम्मा ने कहा, भटकी हुई है, इसे सुबह थाने में जमा करवा दूंगी। और बड़ी बहन को खाने का शॉपर दिया ताकि हम खाना खा सकें। बहन बोली कि खाना तो कम है, ऊपर से ये लड़की भी है। तो मैंने कहा कि मेरे हिस्से का इसको दे दो, हम मिलकर खा लेंगे। मुझे वो बहुत अच्छी लगी, नाजुक सी, गोरी चिट्टी नीली आंखों वाली, जिसकी आंखें बहुत सहर अंगेज थीं। वो बहुत डरी हुई थी, खाना नहीं खा रही थी, मगर मैं उसे लेकर अलग बैठ गई और उससे बातें करने लगी। वो कुछ नॉर्मल हुई तो उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। मैंने उसे अपने पास ही सुला लिया। दूसरे दिन काम पर जाने के चक्कर में अम्मा उसे कहीं लेकर नहीं गई। मैंने उससे बातें करके दोस्ती भी कर ली। हालांकि वो मुझसे काफ़ी छोटी थी, मगर मुझे अच्छी लगती थी, छोटी बहन जैसी। मैं उससे खूब बातें करने लगी। रात को जब अम्मा आई और खाना खाने के बाद अम्मा ने उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ कैसे पहुँची, तो वो रोने लगी कि मुझसे कुछ ना पूछें, बस मुझे यहीं एक तरफ रहने दें, थाने भी ना लेकर जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस मुझे यहीं पड़ा रहने दें। ये कहकर वो रोने लगी। अम्मा सोच में पड़ गईं कि क्या करें। पहले ही घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, उस पर एक अनजान लड़की की जिम्मेदारी उठाना बहुत ही मुश्किल है। न जाने कहाँ से आई थी, वो किसकी बेटी है, घर से भागी है या कुछ और मसला है। 1000 तरह के सवालात अम्मा पूछ भी रही थी और सोच भी रही थी, लेकिन वो कुछ बताने पर तैयार ही नहीं थी। मैंने अम्मा से कहा, इसे यहीं रहने दें, मैं आराम से उससे पूछ लूँगी। मगर मेरी बहन उसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि पहले ही घर में बहुत मसले हैं और फिर ये तो बहुत खूबसूरत है, हमारे लिए मसला बनेगी। दरअसल काफ़ी कोशिशों के बावजूद उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। उसके नकूश बहुत आम से थे और रंग बहुत काला था। नकूश तो मेरे भी आम ही थे, मगर रंग साफ था। वो उसकी खूबसूरती से जल रही थी, मगर मेरे इसरार पर अम्मा राज़ी हो गई। वो बहुत मिलनसार लड़की थी, पूरे घर का काम खुद संभाल लिया था, किसी को कुछ ना करने देती थी, बदले में सिर्फ पनाह चाहती थी। मगर मेरी बहन नहीं चाहती थी। वो उसे ताने देती थी कि पता नहीं क्या करके भागी है।
वह समझाती तो मुझसे भी लड़ जाती। उसे हमारे घर में रहते हुए 1 महीना हो गया था। वो अच्छी खासी घुल मिल गई थी। अम्मा बहन की बातों से परेशान होकर उसे उसके बारे में पूछ कुछ करने लगीं। तब वो इतनी हरासा हुई कि उसकी सांसें खींचने लगीं, आंखें चढ़ गईं और हलक से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगीं। ऐसा लगने लगा जैसे उस पर दौरा पड़ा है। हम सब परेशान हो गए। अम्मा उस पर दम करने लगीं तो वो कुछ संभली। मैं उसे लेकर कमरे में आ गई। काफ़ी मुश्किलों से उसकी तबीयत बेहतर हुई। तब मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें हमें अपने बारे में कुछ बता दो तो तुम्हारे बारे में फ़ैसला में आसानी हो जाएगी। अम्मा भी मेरे साथ आ गईं। वो हरासा नज़रों से मुझे देखने लगी। उसकी साहिर नज़रें थीं। फिर सर झुका लिया और आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। हम 2 बहनें थीं। आपी बहुत खूबसूरत थी मगर मैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वजह मेरी ये नीली आँखें थी। इसी वजह से मेरा नाम हुरैन रखा गया था। आपी की शादी आरिफ भाई से हुई थी जो हमारे मामू के बेटे थे और मामू मुमानी के इंतकाल के बाद से हमारे साथ ही रहते थे। वो आपी से उम्र में काफ़ी बड़े थे। आपी उन्हें अच्छी लगती थी तो उन्होंने अम्मी से अपने रिश्ते की बात की तो अम्मी ने फ़ौरन हाँ कर दी। बकौल उनके ये एक अच्छा रिश्ता है जिसे उन्हें खोना नहीं चाहिए। हालांकि वो कुछ ख़ास कमाते भी नहीं थे। कभी काम पर जाते और कभी नहीं जाते और उस पर अब्बू ने एतराज़ भी किया, लेकिन अम्मी का कहना था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। आरिफ भाई काफ़ी अजीब तबीयत के मालिक थे। कभी तो बिल्कुल ठीक रहते और कभी बहुत सख्त हो जाते और अजीब नज़रों से घूरने लगते। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मेरे अब्बू एक फैक्ट्री में लोडर का काम करते थे और अम्मी एक घरेलू खातून थी जो जल्द अज जल्द अपनी बेटियों के फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती थी। लेकिन फिर अचानक फैक्ट्री से वापसी पर एक एक्सीडेंट में अब्बू का इंतकाल हो गया और हमारी तबाही का दौर शुरू हो गया। अम्मी को कोई ख़ास काम आता भी नहीं था और आरिफ भाई भी घर बैठ गए थे। कुछ दिन तो अब्बू के वाजिबात से गुजर बसर हुई, फिर फाकों पर नौबत आ गई। मजबूरन अम्मी काम की तलाश में घर से निकली मगर कोई काम नहीं मिला उन्हें कुछ आता भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके एक बंगले पर आया की नौकरी मिली मगर वह सुबह से लेकर रात तक की थी। आपी भी घर में सिलाई के ऑर्डर लेने घर से बाहर जाने लगी। मैं घर में रहती। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। घर के काम काज में वक्त गुजारती। आपी घर आती तो सिलाई मशीन से लग जाती। आरिफ भाई भी घर पर रहते थे। वो तब्दील हो रहे थे या फिर खुलकर सामने आ रहे थे। हर वक्त आपी को जिच रखते। गालम गलोच तो आम मामूल था। अपनी बातों से आपी को हर वक्त रुलाते रहते। कभी कभी तो उन्हें कमरे में बंद कर देते। 2-2, 3-3 दिन बंद रखते। ऐसे में मेरी शामत आ जाती। वो हर वक्त मुझ पर नज़र रखते। कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। हद तो ये कि बावर्ची खाने में काम करती तो वहाँ भी आ जाते। हर वक्त नज़रों में रखते। जब मैंने अम्मी को ये बात बताई तो उन्होंने आरिफ भाई को समझाना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो मुझ पर इसलिए नज़र रखते हैं कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ, जबकि मैं तो दरवाजे पर भी नहीं जाती थी। जब आप ही उन्हें टोकती तो उनको बातें सुनाते कि जैसे तुमने मुझे फांसा था, तुम्हारी बहन भी ऐसे ही किसी को फांस लेगी। मैं तो उसकी हिफाजत के लिए ये करता हूँ। जब आप ही ज़्यादा कहती तो उन्हें कमरे में बंद कर देते। उनका खाना पीना बंद कर देते। वो बेचारी दूसरे हाल से भी थी। कुछ नहीं कर पाती तो रोने लगती। फिर मैं उनकी मिन्नत करती, हाथ पाँव जोड़ती कि अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, प्लीज़ उनको छोड़ दें। फिर कहीं जाकर वो उन्हें कमरे से निकालते। उन्हें बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती थी। कहते थे कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मैं इस घर का बड़ा हूँ। इसके बाद तो उन्होंने मेरा पीछा ही घेर लिया। मैं जहाँ जाती वहाँ आ जाते। मुझे हर बात पर टोकते थे। मेरे उठने बैठने, खाने पीने, हद तो ये है कि सोने के लिए भी ये कहते कि उनके सामने ही सोऊं। मैं उन सब से घबरा गई और एक बार फिर अम्मा से कह बैठी। अम्मा का उनसे बात करने का नतीजा ये निकला कि उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और खाना पीना भी बंद कर दिया। आप ही और अम्मा उनकी मिन्नतें करती रहीं। 3 दिन के बाद उन्हें रहम आ गया, जब तक मैं होश व हवास खो चुकी थी और बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से होश में आई। फिर ये अक्सर होने लगा। ज़रा सी गलती पर कभी मुझे और कभी आप ही को कमरे में बंद कर देते और हर वक्त जहनी टॉर्चर में रखते, जिसकी वजह से मैं खौफज़दा रहने लगी थी। अचानक रोने लगती, कभी अजीब व गरीब हरकतें करने लगती। ये देखकर आपी ने अम्मा से कहा कि तुम अपनी मालकन से बात करके हुरैन को अपने साथ ले जाया करो ताकि वो इस जहनी अजियत से तो बच सके, वरना वो पागल हो जाएगी। मेरी तो मजबूरी है, मुझे इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, मगर हुरैन का क्या कसूर है जो इस जहनी मरीज़ की अजियतें सहे। अम्मी ने मालकन से बात की तो वो कहने लगी कि हाँ, हमें एक मुलाजमा की ज़रूरत भी है।
तो तुम अपनी बेटी को ले आना, लेकिन हमें ऐसी मुलाजमा की ज़रूरत है जो 24 घंटे यहाँ पर ही रहे। मुलाजमा के खाने पीने और रिहाइश का इंतज़ाम हम खुद ही कर देंगे। और मेरी अम्मी को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि काम ही ऐसा था। वो इस बात पर राज़ी हो गई। वो वैसे भी मेरी वजह से काफ़ी परेशान थी। इस तरह मैं अम्मी के साथ चली गई, मगर वहाँ एक नई मुसीबत मेरे इंतज़ार में तैयार खड़ी थी। मेरी खूबसूरती ही मेरे लिए अजाब बन रही थी और मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं था। आरिफ भाई की दी हुई जहनी अज़ियतों ने वैसे ही मुझे नफ्सियाती मसाइल का शिकार बना दिया था, और अब उस पर रमीज़ हमारी मालकन का इकलौता बेटा था। हमारे मालकन की 2 बेटियां थीं और 1 बेटा था। उनका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत अमीर लोग थे, ये बहुत सारे मुलाजिम थे। उन सब में मैं सबसे कम उम्र थी। मुझे उन्होंने अपनी सास के कामों के लिए रखा था। 24 घंटे मुझे उनके पास रहना पड़ता। उनकी देखभाल, उनका खाना पीना, दवाओं का ख्याल रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। उन्हें सब बी जान कहते थे। मैं क्योंकि सिर्फ बी जान के काम करती थी, तो मेरा घर के बाकी लोगों से सामना बहुत कम होता था। इसीलिए मेरा रमीज़ से कभी सामना नहीं हुआ था। मालकन मेरे काम से बहुत खुश थी और वो बी जान की तरफ से काफ़ी बेफिक्र हो चुकी थी। मुझे बी जान अच्छी भी लगती थी और मैं भी खासी मुतमईन थी। एक रात बी जान को भूख लगी। उन्होंने मुझे खाना लाने को कहा। मैं उनके लिए किचन में खाना गर्म कर रही थी। ये कोई 3 बजे का वक्त होगा। मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेली यहाँ पर काम कर रही हूँ, कोई आ ना जाए, कि अचानक मेरे पीछे सरसराहट हुई। मैं डर गई। मुड़ कर देखा तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़का खड़ा था। वो भी मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ कि आधी रात को इनके घर में ये कौन है। हु आर यू? उसने मुझे देखते ही सवाल किया। इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। लिटिल गर्ल, कौन हो तुम? मैं अपने पीछे किसी लड़के को देखकर डर गई और खौफजदा निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। वो काफ़ी देर तक मेरी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, डरो नहीं, मुझे बताओ कौन हो तुम? जी, मैं नई मुलाजमा हूँ, बी जान के काम के लिए रखी गई हूँ। डर के मारे मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। इतनी सी देर में ही? अच्छा। फिर वो काफ़ी देर तक मेरी आंखों में देखता रहा और फिर चला गया। उसके बाद रमीज़ की शक्ल में मेरा एक नया इम्तहान शुरू हो गया। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती, वो उतना ही मेरे आसपास आने की कोशिश करता। हालांकि बात कुछ भी नहीं करता था, बस देखता था। 25-26 साल का एक खूबसूरत लड़का था। सारा कारोबार संभालता था। सब मुलाजिम कहते थे कि वो बड़ा ही सख्त मिजाज और अय्याश तबीयत का मालिक है। बी जान ने भी मुझे उससे मोहतात रहने का कहा और कहा कि तुम उसके सामने ही मत जाना। वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, मगर अब वो अक्सर घर में नज़र आने लगा और इस बात को सब ने नोट किया था। मालकन ने भी। वो अपने बेटे की मेरी तरफ तवज्जो को नोट कर रही थी। मैं अम्मी से कुछ भी नहीं कह सकी। पहले ही आरिफ भाई की वजह से परेशान थी। डर गई कि कहीं ये आसरा भी ना छिन जाए। मालकन ने भी मुझे ही डांटा और रमीज़ की मौजूदगी में कमरे से बाहर आने से मना कर दिया। वो मुझे निकाल नहीं सकी। मैंने बी जान की तरफ से उन्हें बेफिक्र जो कर रखा था। उस दिन बी जान को मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे। मैं भी उनके साथ ही थी। वापसी में गाड़ी ड्राइवर के बजाय रमीज़ चला रहा था। मुझे इस बात में काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं समझी कि दादी की वजह से आया होगा। मुझे परेशानी उस वक्त शुरू हुई जब वो हमें अपने घर के बजाय कहीं और ले आया। फिर वो हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। बी जान को कमरे में लेटाया और फिर मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, कुछ देर बाद मेरा तुमसे निकाह है, खामोशी से कर लेना, मैं तुम्हें वैसे भी हासिल कर सकता हूँ, मगर ये तुम्हारी आंखें मुझे ये करने से रोकती हैं। लिहाजा अगर खैरियत चाहती हो तो खामोशी से निकाह नामे पर साइन कर देना, वरना तुम्हारी आंखों की पाकीज़गी भी मुझे नहीं रोक सकेगी। मैं बहुत डर गई थी। इतनी सी उम्र में मर्दों के ऐसे रूप, मेरे तो हवास ही काम नहीं कर रहे थे। मैं इन सबको नहीं समझ पा रही थी। बस मुझे ये पता था कि इज़्ज़त ख़तरे में है। फिर जो जो रमीज़ कहता गया मैं करती गई। निकाह के बाद रमीज़ हमें घर छोड़ गया। बी जान को उसने खुद ही सब बता दिया था और वो बिल्कुल चुप थी। उसने मुझे भी चुप रहने का कहा था कि घर वालों को मैं खुद बता दूंगा। मुझे पता था कि जब ये बात खुलेगी ये ठिकाना भी छिन जाएगा, और वही हुआ। बी जान ने सुबह ही ये बात मालकिन को बता दी और मालकिन ने अम्मी को बुलाकर मुझे और उन्हें बहुत जलील किया। अम्मी पहले ही मुझसे नाला थी। रोते हुए कहने लगी, आप मालकिन हैं, जो चाहें फैसला करें, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं अम्मी की संगदिली पर हैरत ज़दा रह गई।
कोई माँ ऐसा भी कर सकती है। और फिर मालकिन मुझे गाड़ी में लेकर रेलवे स्टेशन आ गई और गाड़ी में बिठा दिया कि जहाँ दिल चाहे उतर जाना, लेकिन वापस मत आना, वरना बहुत बुरा हशर करूँगी तुम्हारा। मैं हैरान और परेशान देखती रह गई और वो चली गई। रेल में 2 लड़के मेरे साथ आकर बैठ गए और मैं डर के मारे सबके करीबी स्टेशन पर उतर गई, जहाँ तुम्हारी अम्मी को मिली और अब तुम्हारे पास हूँ। अपने बारे में बताकर हुरैन खामोश हो गई। मैंने और अम्मा ने उसे दुख से देखा। हमारी समझ में इस मसले का कोई हल नहीं आ रहा था। फिर अम्मा ने कुछ सोचते हुए ये सब कर डाला, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। हूरी को जब होश आया तब भी वो औरत अपनी मुलाजमा और अपने बेटे के साथ वहीं मौजूद थी। दरगाह पर मौजूद मुजावर उसकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने किसी को उसके करीब नहीं जाने दिया। वो होश में आई तो उसने उस औरत से कहा कि देखो, मैं नहीं आई, तुम आई हो। ये कहकर वो अपने हुजरे में चली गई। तब वो औरत रोने लगी कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि इस जुल्म की पकड़ इतनी सख्त होगी। खुदा के लिए देखो मेरे बेटे को, इस गम में क्या हाल हो गया है इसका। माफ़ कर दो हमें, बहुत सज़ा काटी है हमने। बेटियां तबाह हो गईं, कारोबार बर्बाद हो गया और बेटा जिंदा लाश बन गया। खुदा बहुत बड़ा मुनसिफ है। मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें बर्बाद करना चाहा, हालांकि गलती मेरे बेटे की थी और अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा के तौर पर मेरी औलाद को मेरी आंखों के सामने बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। उनके साथ आई मुलाजमा तो बस रोए जा रही थी, मगर हूरी नहीं सुन रही थी और वो लड़का उस तरफ ही देखे जा रहा था जहाँ हूरी गई थी। मैं रोज़ की तरह हूरी को देखने वहाँ गई थी। मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यह आदमी कौन है। तो वो कहने लगी कि ये मेरा बेटा रमीज़ है और वो हूरी मेरी बहू है, जिसे मैंने खुद जहन्नुम में धकेल दिया था अपनी जन्नत को उससे बचाने के लिए, और अब खुद जहन्नुम में जल रही हूँ। दरगाह के मुंतज़िमीन ने रमीज़ और उसकी माँ को दरगाह के एक हुजरे में ठहराया। उन्होंने कहा कि हूरी इस दरगाह की बेटी है। रमीज़ की माँ ने पूछा कि हूरी यहाँ पर कैसे आई, तो मुंतज़िमीन ने अम्मा को बुलवाया। मैं भागकर अम्मा को बुला लाई। जब अम्मा आई तो वो उस औरत से मिली और बताया कि जब हुरैन ने हमें अपने बारे में बताया तो हमारी समझ में कोई हल नहीं आ रहा था। मैं खुद गरीब औरत थी। एक बेटी मेरी हुरैन का रहना पसंद नहीं कर रही थी। फिर हुरैन शादीशुदा थी और कम उम्र भी। ऐसे मुझे दरगाह के मुंतज़िम का ख्याल आया। वो बहुत नेक और रहमदिल इंसान थे। जब मैंने उन्हें इसका मसला बताया तो उन्होंने कहा कि एक लड़की की इस तरह हिफाजत करना मुश्किल काम है, मगर फिर मेरी मजबूरी देखकर राज़ी हो गए। यूँ हुरैन उर्फ हूरी माई इस दरगाह पर रहने लगी। यहाँ इसने सिर्फ अल्लाह से लौ लगा ली। इतनी इबादत करती कि हम उसे रोकते थे और फिर मालिक ने उस पर ख़ास करम किया। उसकी दुआएं पुरअसर होती गई, यहाँ तक कि वो हुरैन से हूरी माई बन गई। रमीज़ की माँ हूरी को ले जाना चाहती थी। मुंतज़िमीन ने कहा कि अगर हूरी जाना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर हूरी ने जाने से मना कर दिया। रमीज़ इतनी देर में पहली बार बोला कि अगर हूर नहीं जाती तो मैं भी यही रहूँगा, इसी दरगाह का मुजाविर बन जाऊँगा। रमीज़ की माँ रोने लगी कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं कैसे यहाँ छोड़ दूँ। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ऐसे ही जैसे हुरैन को छोड़ा था। ये तो मर्द है, वो तो एक छोटी बच्ची थी, गलत हाथों में लग जाती तो क्या होता। हुरैन की माँ का तो रोना ही ख़त्म नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि उनका गुनाह तो माफ़ी के काबिल भी नहीं है। असल गलती तो थी ही उनकी, पहले नफ्सियाती दामाद के पास छोड़ने की, फिर दिन रात किसी गैर की घर छोड़ने की, और आखिर में मालकिन को सारा इख्तियार देकर उसे घर से भेजने की। अगर मालकिन निकाल भी रही थी तो ख़ुद साथ लेकर कहीं चली जाती। अल्लाह की दुनिया तो बहुत बड़ी थी, मगर जिस तरह इसे मुसीबत में तन्हा छोड़ा था वो एक माँ नहीं कर सकती। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। मैं हूरी के पास बैठ गई, उसे समझाया कि वो पहला मर्द था जिसने ताकत रखने के बावजूद हलाल रिश्ता बनाकर ताल्लुक़ कायम करना चाहा, भले तरीका गलत था। अल्लाह नाराज़ होगा, शौहर के हकूक़ होते हैं। वो कहने लगी, 8 साल का तवील अरसा गुजारा है तन्हा। इतने अरसे में ये जज्बा ही शायद ख़त्म हो गया है मेरे दिल में। उसकी कोई चाह ही नहीं है। वो चाहे तो मुझे छोड़ दे, मगर मैं अब शायद यहाँ से कहीं नहीं जा सकूँगी। ये कहकर वो रोने लगी। मैं सोच रही थी कि किस तरह किसी की लालच, खुद गर्जी और बेहिसी ने इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह किया, तो किसी को अल्लाह ताला ने कैसे अपना
قرب عطا کر کے خاص بنا لیتے ہیں۔ رمیز کی ماں وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ رمیز وہیں رہتا رہا۔ اس کے 2 ہی کام تھے، درگاہ کی صفائی اور حوری کو دیکھنا۔ محبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ منتظمین، اماں اور میرے بار بار سمجھانے پر حوری رمیز کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ درگاہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ رمیز تو پہلے ہی ہر بات پر راضی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تو آج تک پہلی نظر کے سحر سے نہیں نکل سکا ہے۔ اسے صرف حور کا ساتھ چاہیے، چاہے کہیں بھی، کیسے بھی ملے۔ قدرت نے ان کا ساتھ لکھا تھا، پھر لوگوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔